Okay, children. So I was saying that the rest of the content you will just read yourself. Today we will do the question answers of this chapter. So firstly, give heading chapter 7. दीजिए heading दीजिए chapter 7. Planning ahead by the people, comma, for the people. Planning ahead, PLANNING, planning ahead, HEAD. ज्वाइन आएगा बेटा. ahead जो है वो आपने इकट्ठा लिखना है. Planning ahead, डॉट लगाइए, by the people, comma, for the people. लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो है वो प्लानिंग करनी है. ठीक है. So write down first question. Define community contingency. Define TY community contingency, CONTINGENCY contingency plan. Define community contingency plan and give 2 reasons for the need of a plan and give 2 reasons. Give 2 reasons, REASONS, reasons for the need of a plan. चलिए लिखिए आंसर. In case of a natural disaster, in case of a case of a natural, NATURAL, natural disaster, 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 there is a THERE, there is a great loss of, GREAT, great loss of life and property. होता है जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है ना. फुल स्टॉप. टू प्रिवेंट दिस लॉस, prevent, PREVENT, prevent this loss, comma, awareness, AWARENESS, awareness is created in the neighborhood. To prevent this loss, comma, awareness is created, CREATED, created in the neighborhood, NEIGHBOURHOOD, neighborhood, NEIGHBOUR, neighbor, साथ में hood लगा दीजिए, HOOD, neighborhood, or in the community. इस लॉस से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो हमारी सराउंडिंग है उन लोगों को अवेयर करना. ठीक है. और इन द कम्युनिटी, COMMUNITY, full stop. A community plan identifies a
community plan identifies, IDENTIFIES, identifies some actions, ACTIONS, actions to Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, can you repeat this line again? Okay, fine. मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर देती हूँ. In case of a natural disaster, I'm audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो भी अभी पूछ रहे थे उसको मैं ऑडिबल हूँ. Yes, ma'am. Okay, somebody is again messaging me that I am not audible, but I am audible, beta. You have signal issue. इसलिए आपको नहीं सुनाई दे रहा है. आपका वहां पे प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरे यहाँ पे तो मतलब बहुत बढ़िया है सब कुछ. बाकी बच्चों को मैं ऑडिबल हूँ ना? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. हाँ, तो वो जिसको मैं नहीं ऑडिबल हूँ, मे बी she and he has signal issue, so kindly just search that place where you can just hear me. In case of a natural disaster, there is a great loss of life and property. Full stop. To prevent this loss, to prevent, PREVENT, prevent this loss, LOSS, comma, awareness is created, AWARENESS, awareness is created, CREATED, created in the neighborhood, NEIGHBOUR, neighborhood, HOOD, or in the community, COMMUNITY, and nobody will just look at the devices. डिवाइस की तरफ ही नहीं देखते रहेंगे आप लोग, है ना? मैं कॉपी पे लिखवा रही हूँ तो कॉपी पे अपनी स्पेलिंग चेक किया करो. हर कोई मुझे नजर आ रहा है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है. ठीक है, सो डिवाइस की तरफ नहीं देखते रहना है. अगर आपका हो भी गया है, मैं रिपीट करवा रही हूँ, तो एट द टाइम इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट काइंडली चेक द स्पेलिंग्स. फाइन, ओके. यहाँ तक लिख लिया सभी ने? आगे लिखिए. अ कम्युनिटी प्लान identifies, IDENTIFIES, identifies some actions, ACTIONS, actions to be taken by, some actions to be taken by individuals in advance. Actions to be taken by individuals, INDIVIDUALS, individuals in advance, ADVANCE. Full stop. When a disaster, DISASTER, disaster strikes, STRIKES, when a disaster strikes, comma, each individual, INDIVIDUAL, each individual works, WORKS, works according to the plan, ACCORDING, according to the plan. Full stop. This way, THIS, this way, WA by way, the people, PEOPLE, people are members of community, can help to prevent the loss. The people or members of community can help to prevent the loss.
full stop. Contingency plan can be contingency, C-O-N-T-I-N-G-E-N-C-Y, contingency plan can be prepared. कंटिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक, मतलब एकदम से, ठीक है। जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, मिसहैपनिंग होती है, कोई डिजास्टर होता है, तो जब सडनली हमें प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। कंटिजेंसी प्लान कैन बी प्रिपेयर्ड, P-R-E-P-A-R-E-D, prepared to meet out natural disaster, can be prepared to meet out natural disaster, comma, outbreak of an epidemic, accidents, A-C-C-I-D-E-N-T-S, किसी भी तरह का कोई एपिडेमिक हो या कोई सडन डिजास्टर होता है, तो जब हम एकदम से प्लानिंग करते हैं तो उसकी हेल्प से जो है वो हम बहुत ज्यादा खतरों से बच सकते हैं, ठीक है। वी नीड अ प्लान फॉर द फॉलोइंग रीजंस, और हमें क्यों जो है वो सडन जो प्लान है उसकी जरूरत होती है, लिखिए वी नीड अ प्लान फॉर द फॉलोइंग रीजंस, FOLLOWING, following reasons, REASONS, columns, reasons के बाद columns लगाएंगे, and number 1, to minimize, M-I-N-I-M-I-S-E, minimize the effect of natural, N-A-T-U-R-A-L, natural disaster. Number 2, help the community to cope with the COPE. Help the community to cope with the disaster. Help the community to cope, COPE, cope with the disaster in an effective manner. In an effective, E-F-F-E-C-T-I-V-E, effective manner. Written children activity. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Somebody's camera is still off. I don't know why. Okay, children, your question second is, name 4 elements of community contingency plans. लिखिए, आपकी एनसीईआरटी की ना बुक में भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, नेम 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी contingency, CONTINGENCY. Got it, children? You got it, the questions? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Page number Yes, ma'am. 6. Okay, right. Name 4 elements of community contingency, CON. जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है, that's why मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, 1 लेटर बोल रही हूँ मैं हर स्पेलिंग का, ठीक है, पर गलत नहीं लिखना है आपको। Name 4 elements of community contingency, CONTINGENCY, plans, 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 or what should the
the THC the community contingency CONTINGENC by contingency plan 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 consist of CONSIST consist of, मतलब कौन कौन सी चीजें जो है वो इस प्लानिंग में जो है वो आपको जो है वो इंक्लूड करनी है, उसके बारे में हम लिखेंगे। जो हम एकदम से सडन प्लान कर रहे हैं तो लिखिए फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी कंटिजेंसी प्लान्स। देखिए फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स following are the elements of community contingency plans। स्पेलिंग सभी वर्ड्स की आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चंस में मैंने आपको लिखवा दिया था। सो लिखे नंबर 1 इनिशियल awareness and rapport building। इनिशियल अवेयरनेस 55 जो पेज है ना आपका, उस पे जो टॉप पे देखिए वहां पे ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पेज नंबर 55 ऑफ चैप्टर 7। हर क्वेश्चन का आंसर ना बुक में ही मिल जाता है अगर हम थोड़ा सा मतलब देखें तो, ठीक है। मैं बोलूंगी भी जिनके पास बुक्स नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं लिखवाऊंगी, साथ में आप लोग ना वहां से जिनके पास बुक्स है वहां पे टिक कर लो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 मिले 5 पॉइंट्स ऑन पेज नंबर 55 माइट भी पेज नंबर 55 ही है। ये जो 5 पॉइंट्स है ना ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। सो जिनके पास बुक्स हैं वो स्पेलिंग्स वहां से देख लो, अगर नहीं है तो मैं डिक्टेट करवा रही हूँ। लिखो नंबर 1 इनिशियल अवेयरनेस। इनिशियल हमसे 4 पूछे हैं तो हम 4 ही लिखेंगे। और वैसे भी ना इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते नहीं है, मैंने पहले भी आपको बोला कि मैंने जो लास्ट ईयर के पेपर्स देखे उसमें कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से है नहीं, पर फिर भी हम जो है वो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, ठीक है। इनिशियल अवेयरनेस एंड रैपॉर्ट बिल्डिंग RAPPORT रैपॉर्ट बिल्डिंग BUILDING। नंबर 2 पे लिखिए टू आउटलाइन TO2 outline 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 the profile of the community, to outline the profile of the community, profile of the community PROFILE profile of the community COMMUNITY community। Number 3 analyzing the situation, analyzing ANALISING analyzing the situation, analyzing the situation on a participatory basis। एनालाइजिंग, अब ये जो पॉइंट्स है ना बेटा ये आपको एज इट इज ही लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये होती हैं मतलब कोटेशंस आप कह सकते हो, ठीक है। तो जैसे डेफिनेशन होती है उसमें आपको चेंजिंग नहीं कर सकते हो, तो ये पॉइंट्स भी जो है वो इनमें मतलब ये 2 to 3 वर्ड्स का एक फ्रेज बनाया हुआ है, तो इसमें आपने जो है वो चेंजिंग नहीं करनी है, एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑन अ पार्टिसिपेटरी बेसिस। पार्टिसिपेटरी पहले पार्ट लिखिए PART पार्टिसिपेटरी ICIPATORY पार्टिसिपेट की लिख लो पहले स्पेलिंग ORY लगा दो, ठीक है। पार्टिसिपेटरी analyzing the situation on a participatory basis BASIS। नंबर 4 लिखिए rehearsals/mock drills।
ठीक है, करवाई जाती है ना रिहर्सल्स। जैसे आप कभी कभी देखते हो कि कुछ मतलब जो ऐसे एरियाज होते हैं वहां पे आपकी अर्थक्वेक से रिलेटेड या आग लगने पे हमें किस तरीके से खुद को बचाना है, तो मॉक ड्रिल करवाया जाता है। मॉक ड्रिल होता है कि झूठ में प्रैक्टिस पहले करवा दी जाती है कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे सडन हमें जो है वो कैसे अपने आप को बचाना है। जैसे अर्थक्वेक के लिए भी आपको बताया जाता है कि अगर स्कूल में अगर आप बच्चे हैं, बिल्डिंग के अंदर बच्चे हैं और अर्थक्वेक अगर आता है तो उनको उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ स्कूल्स में ऐसा करवाया जाता है, ठीक है। तो क्या बताया जाता है कि जो आपके बीम्स हैं और जो आपके डेस्क्स हैं उसके नीचे आपने अपने आप को जो है वो क्या कर लेना है, छुपा लेना है, ताकि आपको जो है वो ज्यादा इंजरी ना हो, आप जो है वो बच सके, ठीक है। सो इस तरह के मॉक ड्रिल्स और रिहर्सल्स जो है वो करवाई जानी चाहिए, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हमने लिख लिए। नंबर 1 लिखा इनिशिएट अवेयरनेस एंड रैपोर्ट बिल्डिंग। Number 2, to outline the profile of the community. Number 3, analyzing the situation on a participatory basis. Number 4, rehearsals or mock drills. Everybody has written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next question. Next question है आपका, identify the components to be present in a resource map. Question number 3 है आपके एनसीईआरटी की बुक में। Identify the components. Identify, IDENTIFY, identify the, the components, 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 to be, to be, BEB, present, 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 in a resource map, RESOURCE, resource map, MAP, map sign of interrogation। तो जो रिसोर्स मैप है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि उसमें कौन कौन सी चीजें हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको कौन से पेज पे है। ये पेज नंबर 57 है मेरी बुक में। लास्ट में देखिए, अभी मैंने आपको करवाया भी था क्लास। Got it, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो मेरी बुक है उसमें 57 पेज है और सेकंड पार्ट में देखिए आप, ठीक है, रिसोर्स मैप जो है उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। सो लिखिए आंसर। सभी ने क्वेश्चन लिख लिया। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स टू बी प्रेजेंट इन अ रिसोर्स मैप। रिटन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Write down answer. The components to be present. The components, 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 to be, TO2B, present, 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 in a resource map, RESOURCE, resource map. The components to be present in a resource map are as follows. The components to be present in a resource map are as follows. Number 1, individual skills. Individual skills. INDIVIDUAL. Individual skills. ब्रैकेट में लिखेंगे कम्युनिटी लीडर्स। कम्युनिटी लीडर्स है ना, काम करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट लोग। जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है
मतलब कुछ लोग जो हैं वो जैसे अगर आपका फ्लड ही आ जाता है तो वहां पे कुछ लोग स्विमिंग के थ्रू लोगों को बचाते हैं, कुछ लोग उनको गाड़ी में मतलब डालकर जो है वो हॉस्पिटल्स तक पहुंचाते हैं। तो गाड़ी के लिए हमें ड्राइवर्स की जरूरत होती है। जब हम हॉस्पिटल लेंगे तो हॉस्पिटल्स में हमें डॉक्टर्स एंड नर्सेस की जरूरत है, वो उनको जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग काम जो है वो करते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल स्किल्स जिसमें कौन कौन से लोग आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, पर यहाँ पे हम 3-4 के नेम लिखेंगे। बहुत लोगों का रोल रहता है इन सब चीजों को हैंडल करने में। लिखेंगे ब्रैकेट में कम्युनिटी लीडर्स, COMMUNITY कम्युनिटी लीडर्स, LEADERS लीडर्स, स्लैश करके लिखेंगे डॉक्टर्स, DOCTORS डॉक्टर्स, स्लैश करके लिखेंगे ड्राइवर्स। अभी फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है बेटा हमारा, ड्राइवर्स, DRIVERS ड्राइवर्स, एंड स्विमर्स एटसेट्रा। जब हम ETC लगा देते हैं ना, उसका मतलब होता है कि और भी बहुत लोग हैं इसमें। ठीक है, हमने मतलब यहीं पे खत्म नहीं कर दिया, लेकिन हम 3-4 के एग्जाम्पल दे दिए। देन एटसेट्रा मतलब जो भी लोग इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, कम्युनिटी लीडर्स स्लैश डॉक्टर्स स्लैश ड्राइवर्स एंड स्विमर्स एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज। नंबर 2 पे आइए। फर्स्ट लिख लिया सभी ने पॉइंट 1, एवरीबॉडी हैज रिटन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Yes, सेकंड ma'am. लिखिए रिसोर्सेज अराउंड द एरिया, रिसोर्सेज अराउंड द एरिया। अब रिसोर्सेज भी चाहिए, ठीक है, हमें बोट्स भी चाहिए लोगों को बाहर निकालने के लिए, हमें गाड़ियां भी चाहिए, एम्बुलेंस भी चाहिए, बाकी की भी बहुत ज्यादा सामान चाहिए हमें, लोगों को मेडिसिन देने के लिए भी चाहिए, है ना, लोगों के लिए खाना भी चाहिए। फिर हमारे पास फ्रेश वाटर भी होना चाहिए, गंदा पानी थोड़ी पिला देंगे हम, अगर कोई भी आपदा आती है उससे तो वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, है ना। सो लिखो रिसोर्सेज अराउंड द एरिया। RE रिसोर्सेज क्या होता है, जो भी संसाधन, तो संसाधन जो भी हम यूज कर रहे हैं। अभी हम एक पेंसिल मैंने पकड़ी है तो ये भी मेरे लिए एक रिसोर्स है, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, ये भी मेरे लिए एक संसाधन है। मैं आपको डिवाइस से हम कनेक्ट हैं, दिस इज ऑल्सो अ रिसोर्स, क्योंकि जिस भी चीज के माध्यम से हम कोई भी काम कर पाते हैं दैट इज रिसोर्स। ठीक है, सो नंबर 2 हमने लिखा रिसोर्सेज अराउंड द एरिया, ब्रैकेट में लिखिए बोट्स, BOATS बोट्स, कॉमा फूड स्टॉक, FOOD फूड स्टॉक, STOCK फूड स्टॉक एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज। नंबर 3 लिखिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस, नंबर 3 पे लिखिए important, IMPORTANT important locations, LOCATIONS locations such as open land। अब सही सी बात है, हमने लोगों को रेस्क्यू करना है, मान लो हम जो है वो उस टीम में हैं, हमने लोगों को रेस्क्यू करना है, तो एक खुली जगह का भी हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे खुली जगह है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें अपने नगरोटा की ही आप बात करें तो नगरोटा में खुली जगह कहाँ पे है, जहाँ पे ज्यादा मतलब खतरा भी नहीं होगा। आपका जो गांधी ग्राउंड है उसके चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है कि मतलब लोगों को हम वहां पे थोड़े टाइम के लिए रेस्क्यू कर सकते हैं, वहां पे उन्हें मतलब रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो खुली जमीन का, खुली जगह का भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो important locations such as open land, OPEN open land, क्योंकि जो खुली जगह होती है वहां पे सबसे ज्यादा बचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पे आपके ट्रीज भी कम होंगे, ठीक है, बिल्डिंग्स भी कम होंगी। जैसे स्टेडियम है आपका, आपने अगर देखा होगा धर्मशाला में, ठीक है, HPCA का, तो वो भी काफी ज्यादा मतलब जगह है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। या अगर आप पुलिस ग्राउंड देखेंगे धर्मशाला का, वो भी बहुत ज्यादा से मतलब प्लेसेस हैं जहाँ पे हम रेस्क्यू कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, परमानेंट तो ये चीजें होती नहीं है, पर शॉर्ट टाइम के लिए हमें रेस्क्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लोकेशंस का हमें पता होना चाहिए, सच एज ओपन लैंड, ठीक है, स्लैश लो लाइंग एंड एलिवेटेड एरियाज। ओपन लैंड का तो हमें पता होना ही चाहिए जहाँ पे हमने लोगों को ठहराना है, ठीक है, लेकिन हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे
लोग हैं या कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कौन से ऐसे घर हैं, स्लम्स हैं जो ऐसे एरिया पे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है, जो आपके लो एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी आने का, फ्लड आने का ज्यादा चांसेस होते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। ठीक है, so slash low lying, LOW, low, LYING, lying and elevated areas, ELEVATED, elevated areas, full stop. So आगे लिखिए नंबर 4, protection bunds, BUNDS, protection bunds, BUNDS, यही स्पेलिंग है बच्चे, देखना अपनी बुक में। रिद्धि क्या हो रहा है, किससे बात हो रही है? नो मैम, मैं मम्मा पूछ रही है क्या करवा रहे हैं। तो बताया आपने क्या करवा रहे हैं? यस मैम, मैम राइटिंग में लिखा था, मम्मा ने पूछा राइटिंग कैसे लिख रही है। ओके हाँ, तो आपकी राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, इनका भी राइट बनता है ना पूछने का कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो। यस मैम, राइटिंग भी आप मैम रफ नो, में लिख रही है। तो रफ में लिखने का मतलब ये थोड़ी है कि आप हवा में लिख दो, थोड़ा सा तो समझ में आना चाहिए ना, उसमें थोड़ी सी तो चल सकती है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि मतलब बी को आप डी लिख दो, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपनी राइटिंग को आपने सही करना है। तो प्रोटेक्शन बर्न्स, PROTECTION, प्रोटेक्शन बर्न्स, यही स्पेलिंग है बेटा, अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, BUNDS ही स्पेलिंग गिवन है। Yes, यस मैम, यस मैम। नंबर 5 लिखिए ड्रेनेज फैसिलिटीज, थोड़ा जल्दी लिखना हमारा, नहीं तो पॉइंट छूट जाएगा। ड्रेनेज, DRAINAGE, फैसिलिटीज, ड्रेनेज फैसिलिटीज। ठीक है, फ्लड वगैरह आता है, बारिश होती है मानसून में, तो ड्रेनेज फैसिलिटीज हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी को निकलने का हमने प्रॉपर नहीं किया होगा काम, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने की मतलब खतरा रहता है। ठीक है, तो ड्रेनेज फैसिलिटीज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 6 देखिए, एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चर एरिया, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर एरिया, कॉमा फॉरेस्ट एरिया, एग्रीकल्चर एरिया। इसमें बताया कि जो मैप बनाएंगे ना आप, उसमें कौन कौन सी चीजें दिखानी है आपने, तो हमने लिखा कि हमें जो है वो इसमें इंडिविजुअल स्किल्स जो है उनको भी दिखाना है कि कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, है ना। फिर हमने रिसोर्सेज अराउंड द एरिया, बोर्ड्स, फूड स्टॉक, ये सब चीजें भी उसमें शो करनी है। देन हमने इंपॉर्टेंट लोकेशंस को उस मैप के ऊपर, जो जैसे आप कोई भी मैप देखते हो तो उसमें ये सब चीजें होती हैं बच्चे। ठीक है, देन प्रोटेक्शन वॉल्स, यानी हमने जो है वो जो बांध हैं, जिससे कि जैसे बांध देते हैं तो किस लिए दिए जाते हैं उनको, ताकि प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, ड्रेनेज फैसिलिटीज, वो चीज भी हमें मैप में दिखानी है। देन एग्रीकल्चर एरिया दिखाना है, कॉमा लगाइए, फॉरेस्ट एरिया, FOREST, फॉरेस्ट एरिया, एंड शेल्टर, वेल्स, एटसेट्रा। मैंग्रोव प्लांटेशंस अगर लिखना है तो लिख दो, मैंग्रोव प्लांटेशंस, ये भी एक जो है वो आपका उसका टाइप है, जो फॉरेस्ट होते हैं ना आपके, डिफरेंट टाइप्स के आपने पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, शेल्टर, वेल्स, एटसेट्रा, शेल्टर, SHELTER, शेल्टर, वेल्स, एटसेट्रा। Done everyone? यस मैम, यस मैम। For today, so you have to do these question answers on your fair notebook, and also I will publish this chapter, but I will publish this chapter on tomorrow, because on tomorrow this will be completed. ठीक है, कल जो है ये कंप्लीट होगा तो मैं कल पब्लिश करूंगी, एंड जो आपका नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है उसके लिए